नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, in French, bonsoir, Pradeep ji. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Wow. Isn't that lovely? And whichever language you speak in, there's only one language in Maharashtra right now, which is that the Mahayuti has won. Oh God, and what a victory. What a victory, Pradeep ji. What a victory. Nobody could have predicted that except Pradeep Gupta. Except Pradeep Gupta. I think he has finally he has finally found absolution. Yeah, after the debacle of the last three elections, this man was the only one who said about 200 seats. As far as we are concerned, we had discussed about 180 plus seats over here in this show कि 180 के करीब शायद आ जाएं, लेकिन प्रदीप जी 231, 233, मतलब I don't know what the final figure will be, which is absolutely amazing, absolutely amazing. I mean, I don't know what happened, but maybe I know what happened. As we've been saying over here, हम यहाँ पर बार बार एक चीज बोल रहे थे कि भाई देखिए, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, हमारे घर में हमारी बिल्डिंग में प्रदीप जी बिल्कुल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, संघ परिवार के जो लोग हैं मिनिमम 3 बार आए, 3 मर्तबा आए। कांग्रेस से एक भी नहीं आया, नॉट 1% came from the Congress. अशोक भाव यादव was a very old friend of mine. Maybe अशोक भाव thought that मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरे यहाँ पे आने के बाद क्या होने वाला है, मतलब सब लोग जानते तो हैं। लेकिन अमित साटम साहब जो 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं, he did not leave anything to chance. उनके 2 या 3 बार मिनिमम लोग आए बिल्डिंग में और यही मैंने सुना, बाकी हर जगह पे पूरे अंधेरी वेस्ट में यही आलम था। और कांग्रेस की तरफ से सडनली हरियाणा चुनाव के मतलब रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद, Congress as if it just sat down. I don't know what happened. Amit Satam in your area, I know he's a very hard-working person. He's a very, very on-the-field job, looking after things, and he aggressively pursues things that have to be done. Yes. जहाँ भी assembly में आप speaking देखो या on-the-field काम करना, but I think what worked for the BJP's, Hindutva has worked for them, development has worked for them. People believed when they said that development हमने किया है. And third is consolidation of Hindutva and non-Maratha votes जितने भी है, OBC, SC, ST सब लोग जुड़ गए and Maratha votes. अब जिस प्रकार से इतने landslide margin से जीते हैं, तो I think all sections of the society, even the Maratha community has voted for the BJP. अरे even the Muslims, absolutely clear. प्रदीप जी, even the Muslims have voted. Yes. मतलब जो 7,500 रुपए जो बैंक में पहुंचे हैं ना सर, yes, you can't argue against that. Exactly what happened in मध्य प्रदेश। और यहीं पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कांग्रेस के जितने भी नेता थे, हर एक को हम यही बोल रहे थे, भैया इसको जरा आप हल्के में मत आंकिए, ये लाड़की बहना स्कीम जो है, और वही हुआ है जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया था मध्य प्रदेश में, वही यहाँ पर आदरणीय सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार ने यहाँ पर कर दिया। And when you say Muslims have voted, they have voted for him. हम अपने constituency की बात करते हैं, कलीना में दो the BJP अमरजीत सिंह lost by few thousand votes, 5,000 वोट से हारे हैं, but considering it Muslim dominated, Christian dominated, minority dominated क्षेत्र है कलीना, उसमें भी कांटे का टक्कर, he just lost on the last few rounds, he just lost it very minutely. तो it seems that even the Muslim women also voted for the BJP. और प्रदीप जी संजय पोटनेस के सामने, yes. अरे भाई, rightfully speaking, संजय पोटनेस should have won by about 25,000 votes. Exactly. वोटों में जीतना चाहिए था। बिल्कुल। All right, and let's go straight across to our guest. I can see Mr. Ajay Pathak of the BJP with us. अजय पाठक साहब को तो मैं देख सकता हूँ, हेमंत कामले साहब को भी देख रहा हूँ, और बीएन कुमार साहब को भी देख रहा हूँ। अरे अजय पाठक जी नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्कार सर, कैसे हैं? सभी को शुभकामनाएं और अभिनंदन। अरे सर आपको अभिनंदन, क्या बात सर, क्या परफॉर्मेंस रही, मतलब आपने तो नॉकआउट कर दिया, बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी सारी। बहुत वक्त के बाद आप अपने आप को पेश करो यहाँ जी। और हेमंत कामले साहब, हाउ आर यू सर?
हेमंत सर कामले एक जी, एक एक हाँ, महीने से सर। हम लोग ग्राउंड पे थे। हेमंत कामले जी, हाउ आर यू? I'm Jai fine, Hind, Jai absolutely Maharashtra. fine. How are you, sir? I hope you're okay. And BNK, you called it a tsunami. I'm okay, absolutely okay, no problem. BNK, you called it a tsunami this morning. I think it was 2-3 tsunamis all combined into one. I have never seen the Congress performing so badly. आज तक कांग्रेस की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं रही साहब. Never. I don't think this has ever happened. हेमंत कामले जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि क्या है, अजय पाठक जी तो जीत चुके हैं. जी। अजय पाठक जी को जरा आराम करने के लिए मैं 2 मिनट के बाद अजय पाठक जी के पास आता हूं और अजय पाठक जी से सुनूंगा कि क्या व्हाट वर्क व्हाट डिडंट. तो हेमंत कामले जी, ये बताएं, ये क्या चीज है, ये क्या जादू की छड़ी थी जिसकी वजह से, हाउ मेनी इज इट प्रदीप जी, ना 233 235, बिल्कुल बिल्कुल 233 या 235 सीटें आ गई महायुति की, और बाकी सब लोग जो हैं वो 52-53, मतलब अभी तो लग रहा है 45 और हो सकता है 50 का आंकड़ा भी पार न कर पाए जो महाविकास अघाड़ी है. हेमंत कामले साहब, आप बताएं, प्लीज गो अहेड. नमस्कार। नमस्कार सर. आपने मुझे पूछा कि मैं कैसे हूँ. मैं बहुत ही ठीक हूँ. एक्चुअली इस बीजेपी की जीत के लिए, बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार के इस अलायंस को जीत के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ. लेकिन इस इनकी जीत को एनालाइज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पैमाने पर जो सीटें आई है, इसका अनुमान तो खुद बीजेपी को नहीं था. जी करेक्ट. क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे थे, पिछले 2-3 दिन से आंकड़े दिखा रहे थे इलेक्शन होने के बाद, तो उसके बाद तो ये बीजेपी की एक टीम तो गठजोड़ में जुड़ी हुई थी कि भाई इंडिपेंडेंट आएगा तो उनको अपनी तरफ कैसे खींचे, या जो रिबेलर थे उनको अपनी तरफ कैसे खींचे. तो बीजेपी को भी ये इसका अंदाजा नहीं था ये सब, या सिर्फ एक नाटक कर रहे थे, वो समझ में नहीं आता. दूसरी बात कि ये परिणाम लाडली बहन का है, ये परिणाम बटेंगे तो कटेंगे का है, ये हिंदुत्व का है, ये मराठा आरक्षण जो जरांगे पाटिल का फैक्टर चला नहीं, इसका है. तो बहुत सारे फैक्टर है. तो इसको एनालाइज करना इतने जल्दी एनालाइज है, क्योंकि अभी तक परिणाम आ रहे हैं, अभी तक कुछ परिणाम तो बाकी आ देखे. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो गवर्नमेंट पिछले 10 साल से इस स्टेट में है, हमेशा हमने देखा गया कि भाई 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा जो पावर में थे उनके खिलाफ जाता है. देखिए कि कैसे हम 2014 की बात करें तो 2014 में देखिए कि जो यूपीए गवर्नमेंट था उसके खिलाफ जो मैंडेट गया था मोदी गवर्नमेंट का, वो हमने कहा था कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था जो सेंट्रल में था. वह तब क्या हुआ था कि कोल घोटाला हुआ था, कैबिनेट घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, अन्ना हजारे का लोकपाल बिल, निर्भया हत्याकांड, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं यूपीए के खिलाफ गए थे. लेकिन ये 10 सालों में ऐसी क्या उपलब्धियां थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जबकि आपने देखा है कि 2014 से लेकर 19 और फिर 19 के बाद जो 2.5 साल की इनकी गवर्नमेंट आई, फिर वापस ये आए, फिर अभी ये जो सब मामले, ये सब मसले हैं, इसके बावजूद भी जिस तरह की थम्पिंग मेजॉरिटी आई है, और अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर अलग पार्टी बनाई, एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग बनी, तो 2 पार्टियां तोड़कर उनको साथ में लेकर इसके बाद जो पब्लिक का एक गुस्सा था वो कहीं पर दिखा नहीं. मतलब 4-5 महीने पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुए, वो जो परिणाम थे उसके और अभी में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया, ये एनालाइज करने वाली बात है. मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा. कामरे साहब, बट यू नो इफ यू सी एवरी रीजन, मुंबई हो, कोंकण हो, मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ, एवरीवेयर बीजेपी has scored, एवरीवेयर ट्रेमेंडसली बीजेपी has scored. और आप जितने भी ऑपोजिशन, राहुल गांधी जी और द एंटायर कैंपेन जो था कि अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पंचसूत्री, हर चीज को रिजेक्ट कर दिया कामले जी. हेमंत जी, they have rejected every charges of the opposition and given complete mandate to the BJP. हेमंत जी. जी, मैं महाराष्ट्र के 5 जो विभाग है, फिर उत्तर महाराष्ट्र हो या विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मुंबई और कोंकण हो,
और फिर मराठवाड़ा में तो जरांगे फैक्टर इस बार उन्होंने पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। कोंकण, मुंबई और कोंकण जो एमएमआर रीजन और कोंकण, वहां पर पूरी तरह सुपड़ा साफ कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से उपलब्धियां थी कि जिसके कारण बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार के जो सीटें आई है। देखिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र हमेशा एनसीपी का गढ़ माना गया है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार जो है हमेशा चमत्कार दिखाते, लेकिन जिनका चमत्कार भी इधर दिखाई नहीं दिया, उस असर ही दिखाई दिया। तो बेअसर करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बीजेपी और जो उनके गठबंधन के जो ये थे इन्होंने अपनाई, ये समझ में नहीं आया। लेकिन इसके लिए मैं कहता हूँ कि इसको एनालाइज करने में थोड़ा वक्त जाएगा, क्योंकि इस बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार जी की एनसीपी हो या कांग्रेस को न्यूट्रलाइज थे, बहुत सारे फैक्टर्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। फिर विरार में ठाकुर मतलब बीवीए हो, बहुजन विकास आघाड़ी हो, प्रहार हो या फिर मनसे हो, ये सब लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी जो पावर खत्म करने की बात की है। मतलब जिस तरह से ये चुनाव के जो नतीजा है ये कहीं ना कहीं शॉकिंग है, तो इसको एनालाइज करना हम अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जी दुरुस्त बात है। एंड वी वेलकम नासिर साहब, कांग्रेस के नासिर साहब, वेरी वेरी ब्रेव एंड करेजियस नासिर साहब। अरे नासिर साहब, मजा आ गया आपको देख करके आज। अभी तक मुस्कान नासिर साहब की शक्ल पे बिल्कुल वैसी की वैसी है कांग्रेस के। नासिर साहब, ये तो शॉकिंग रिजल्ट हो गया यार, मतलब मैं नहीं मेरी सुन ली, आवाज आ रही है क्या मेरी? जबरदस्त आवाज आ रही है, आपकी शक्ल भी आ रही है बहुत जबरदस्त। नहीं सुबह से मैं थोड़ी माफी चाहूंगा, लेट ज्वाइन किया क्योंकि सुबह से मैं दिल्ली एआईसीसी ऑफिस में हूँ और रेगुलर डिबेट है मॉर्निंग 8 बजे से कंटिन्यू चल रहा है, तो काफी मैं ट्राइड भी हूँ। बहरहाल आपके हुक्म आई तो मुझे आना पड़ा, तो थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है कि आज हिंदुस्तान के मीडिया में सिर्फ महाराष्ट्र का चर्चा है। जी। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि कई राज्यों में बाई इलेक्शन भी हुआ, झारखंड भी हम बेहतरीन तरीके से जीतते हैं, पर हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह झारखंड की जीत को दबा दिया और महाराष्ट्र के कुचे दबले हुए किसानों पे जो राज करने ये सरकार आई है वो एक न्यूज बन गई, पर वो न्यूज दब गई, वो खबर ना बनी। क्यों ना खबर बनी, ये क्यों ना करे सवाल, बेहतरीन नजारा है ये हिंदुस्तान का, हम पूछते हैं लोगों से ये कौन सा तरीका है। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों ने जिसे रिजेक्ट करते हैं चंद महीना पहले, अभी चंद महीना पहले ही लोकसभा का इलेक्शन होता है और आवाम उन्हें रिजेक्ट करती है, चंद महीने के बाद ये ऐसा रिजल्ट आता है, ये क्या है? ये शॉकिंग नहीं है तो क्या है? हिंदुस्तान ये सवाल करेगी कि इस तरह से मैनिपुलेट करके कोई जीत जाए और इसे जीत बोलते हैं। ये किसानों के ऊपर अन्याय होगा, वो महिलाओं पे अन्याय होगा, वो तमाम सोयाबीन किसानों पे अन्याय होगा, वो बेरोजगार नौजवानों के लिए अन्याय होगा, वो तमाम उन लोगों के सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कांटे के टक्कर में दिखाता है। ये वन साइड जहां 50% से ऊपर वोट परसेंट है, ये कैसे पॉसिबल है? ये आवाम पूछ रही है और इस पे हम सोच भी रहे हैं, लोग बैठेंगे, हम बात करेंगे कहां ये मिस्टेक है, कहां कुचल दी गई। हमारे वोटरों का नाम काटा जाता है, वोटिंग लिस्ट से नाम हटाया जाता है। पुणे के अंदर हमने इसी के अंदर हमने राइटिंग में कंप्लेन दिया कि पुणे में हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है, वहां पे रेड लाइन और ग्रीन लाइन करके लोगों को, रेड वालों को नाम उड़ा दिया जाता है, जो हमारे वोटर है ग्रीन लाइन वालों को रख लिया जाता है। ये कौन लोग है? इस तरह से मैनिपुलेट करके अगर इलेक्शन होगा तो हिंदुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मगर ठीक है, उनकी जीत है, हम लड़ाई में हैं, आगे लड़ेंगे। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, वो मुद्दे खत्म नहीं हो जाएंगे। सीटों से बिखर गए, मगर झारखंड के अवाम ने आज जय जौहर का जो नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एक तमाचा ही तो है। आप देखिए ना, वायनाड में हम बेहतरीन जीत दर्ज करते हैं, 4 लाख। आपको जबरदस्त हासिल होना चाहिए था मराठवाड़ा और विदर्भ में और मराठवाड़ा में आप टोटली साफ हो गए, टोटल साफ हो गए। एग्रेरियन क्राइसिस जो राहुल गांधी जी, नाना पटोले जी, विजय विदेट्टीवार जी बार बार लोगों को, किसानों की समस्या, सोयाबीन, अनियन, शुगर केन, कॉटन, ये चारों इशू लेके लोगों को घर घर तक पहुंचे थे, वो सब रिजेक्ट कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट रिजेक्ट कर दिया, प्राइस राइज रिजेक्ट कर दिया, पंचसूत्री रिजेक्ट कर दिया।
नासिर हुसैन साहब, नहीं, ये रिजेक्ट किया गया है कि मोनिपुलेट किया गया है, ये अभी जांच की बात है, हम उस पर बैठेंगे। आप ऐसा मत कहिए कि हमें रिजेक्ट कर दिया है, ये हो सकता है मोनिपुलेट भी हो। अभी तुरंत हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच जाए कि जनता ने नकारा है कि या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने नकारा है या ईसीआई ने नकारा है, किसने नकारा है, ये थोड़ा वक्त दीजिए। आप तुरंत नतीजे पे मत पहुंचाइए कि महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट किया है। अब थोड़ा वक्त दीजिए हमें सोचने के लिए, क्योंकि इतनी आसान से नहीं हो सकता है। कांटे की टक्कर है, जहां 2-4 हजार की मार्जिन से जीत, या वन साइड 50% वोट शेयर। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है सर? ये 44% से 44 साल के बाद वोटिंग परसेंट बचता है। हमें लगता है वो किसान वोट कर रहे हैं, हमें लगता है वो महिलाएं वोट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसे हमें देखना होगा सर। इतना आसानी से आप जो कह रहे, तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, आखिर तुम्हारी तमाम षड्यंत्र वहां क्यों फेल हो गई झारखंड में? हमें अगर आप बैकिंग ग्राउंड दे दो कि हमें झारखंड जिता दो, कुछ हमें बाई इलेक्शन जिता दो, तो हम इस मुद्दे से चुप हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी वो नहीं है। भले हमारी सीट 0 भी आ जाती, तब भी आवाज वही बुलंद होगी जो आवाज हमारी आज है। हमारे को आप झारखंड जिता के दे दो, तो महाराष्ट्र के नाकामियों को हम नहीं चुप हो सकते। जो महाराष्ट्र की जनता ने चंद महीना पहले आपको रिजेक्ट किया, वो जनता ने ऐसा कैसे मैंडेट दे सकती है? हमें सोचना होगा और तमाम लोगों को सोचना होगा। ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी नहीं हो सकता है। जिस तरह की मैंडेट 50% से ऊपर वोट शेयर, इम्पॉसिबल है। नासिर साहब, कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। झारखंड में आप जीते, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की बहुत अच्छी जीत रही। इनफैक्ट उन्होंने एक और सीट जीत ली बाई इलेक्शन जो हुई। जो 9 बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुई, उसमें से 5 बीजेपी को गई, 4 समाजवादी पार्टी को गई। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद अजय पाठक जी के पास आता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू गॉट 100 सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में ऑफिशियली सेंचुरी पे जाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रियंका गांधी जी 4.5 लाख वोट से जीत कर आई हैं वायनाड से, which is amazing by the way. Congratulations. I hope she performs very well in the Lok Sabha. Now अजय पाठक साहब, अजय पाठक साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको भी विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आप इतनी सीटों से जीत गए? अजय पाठक जी। मैं आज कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। जिस तरह से नासिर साहब का गला फंसा हुआ है, इसी तरह से मेरा भी फंसा हुआ है। मैं भी सुबह 7:30 बजे से चैनल ही हूँ। दूसरी चीज देखिए, ये महाराष्ट्र की जनता का प्रेम है भारतीय जनता के प्रति जो इतनी बड़ी विक्ट्री दी है। और जो हम झारखंड में हारे हैं, वहां जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है, उसको जनता ही जनार्दन है, उसको सिर नवा करके हम झुका करके और दंडवत करते हैं। लेकिन ये चुनाव जो था, ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में था। एक विचारधारा जो विकास की है और दूसरी विचारधारा जो विनाश की है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए ही जाने जाते हैं और ये निगेटिव चीजें ही करते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने जब इनको 13 सीटें दे दी, 13 सीटें लोकसभा में पाने के बाद ये जिस तरह का व्यवहार करने लगे, या पूरे देश में 99 सीटें जो पा गई कांग्रेस, वो 99 सीटों का जो फीवर कांग्रेस को चढ़ गया था, आधा फीवर हरियाणा ने उतारा और अभी पूरा फीवर उतार दिया महाराष्ट्र की जनता ने। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि हमने इसलिए नहीं दिया था कि आप विकास के कामों पे रोक लगाइए और हर चीज को एक निगेटिव पॉलिटिक्स में ले जाइए। राहुल गांधी जैसे 99 सीटें जीत करके आए, उनको लगा कि लोकसभा में हम 400 सीटें जीत लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ये जब घमंड देश के सामने आने लगा, तो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। महाराष्ट्र की जनता ने उसके पहले वहां की जनता ने इनको पूरी तरह से ये समझाने का काम किया कि भैया, ये जो सीटें आपको दिया गया है जनता की भलाई के लिए है। आप निगेटिव पॉलिटिक्स यहाँ कुछ का और कहेंगे, अमेरिका जाके करके कुछ का और कहेंगे, कहीं कुछ और कहेंगे। ये महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार नहीं था। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें खड़ा किया, तमाम तरह के तमाम पॉकेट्स में अलग अलग चीजें खड़ा की, लेकिन कुछ चल नहीं पाया। चला सिर्फ एक चीज, विश्वास और अविश्वास के बीच की लड़ाई थी। पाठक साहब, ये भी चला, पोलराइजेशन चला है। पोलराइजेशन पाठक साहब, पोलराइजेशन चला है। ये एक है तो सेफ है,
कि इनके नेता के ऊपर इस देश की जनता को या महाराष्ट्र की जनता को कोई विश्वास नहीं एक है तो सेफ है पाठक साहब, एक है तो सेफ है। लगातार देवेंद्र फडणवीस जी बार बार मोदी जी आने से पहले में चिल्ला रहा था एक है तो सेफ है, क्योंकि बढ़ेंगे तो कटेंगे। तेलंगाना में क्या किया, पाठक जी में क्या किया, या हिमाचल में क्या किया, ये वहां ये परफॉर्मेंस अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए कि महाराष्ट्र में कैसे करते। महाराष्ट्र में दोनों परिस्थितियां अलग अलग थी। पाठक जी एक है तो सेफ है, इसलिए जनता हमारे आपने पोलराइजेशन किया है पाठक जी। पाठक जी आपको आवाज आ रही है सर? पाठक जी आपने पोलराइज किया है। एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस जी मोदी जी आने से पहले चालू कर दिया था। एक है तो सेफ है, बढ़ेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद होगा तो धर्म युद्ध होगा। तो बार बार आपने पोलराइजेशन करने का कोशिश किया और अल्टीमेटली पोलराइज हो गए। लोग आपके बातों में आए और आपको पोलराइज एक स्ट्रक्चर रिजल्ट सक्सेस में मिल गया। पाठक साहब, प्रदीप जी कांग्रेस ने जो झूठा नैरेटिव खड़ा किया था, पहला संविधान बदलने का, दूसरा कांग्रेस का हमेशा से एक नैरेटिव रहता है, कांग्रेस लेकर के चलती है कि 20% हमारा, 80% में बंटवारा। तो हम 80% में बंटवारा क्यों होने देंगे? ये 20% में कभी बंटवारे की बात की है क्या आज तक? ये 80% में ही बंटवारा क्यों चाहते हैं? और ये तो महाराष्ट्र की धरती का सदियों पुराना 16वीं शताब्दी का ये नारा है कि एक है तो सेफ है। ये आज का नारा थोड़ी है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नारा दिया था, ये उद्घोष किया था हर हर महादेव से लेकर के, और ये एक है तो सेफ है, ये तो नारा सदैव से रहा है। आप ये देख लीजिए, जब जब 80% बटा है तब तब ये देश बट गया है। जब जब 80% एक साथ रहा है, देश मजबूती से एक साथ रहा है, तो ये तो नारा सदियों पुराना है। इस नारे में कोई गलत नहीं है। एक है तो सेफ है। हम तो ये नहीं कहे कि बटेंगे तो कटेंगे, हमने तो ये नहीं कहा कि हम काटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसमें क्या, इसमें कौन सी परेशानी है? और किसको परेशानी होनी चाहिए? परेशानी तो इन लोगों का है जो लोग बांटते हैं। इन लोगों का धर्म ही बांटने का है। कांग्रेस में 1933 से लेकर के 1947 से लेकर के राहुल गांधी की दादी बोलती थी, राहुल गांधी की दादी ने कहा था कि हम जाति और जाति पाति की करो विदाई, और ये यहाँ आकर के आरक्षण की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि इनका कोई नैरेटिव नहीं चलने वाला है, कि सारे नैरेटिव को महाराष्ट्र की जनता ने इनके ध्वस्त कर दिया। किसी प्रकार का कोई काम नहीं, झूठा नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलता। काट की हांडी लोकसभा में एक बार चढ़ गई, अभी वो हरियाणा की जनता ने उसको जला के खाक कर दिया, और जो बचा कुचा था वो महाराष्ट्र की जनता ने जलेबी बना करके राहुल गांधी को भेज दिया कि लीजिए भैया ये जलेबी है, आराम से बैठ करके घर में खाइए, मत फैलाइए। अजय पाठक जी वैसे आज काल भैरव अष्टमी है। अजय पाठक जी आज काल भैरव अष्टमी है। काल भैरव जी को जलेबी का प्रसाद चढ़ता है, ये भी याद रख लीजिए जी। आज महाराष्ट्र की जनता ने जलेबी का प्रसाद काल भैरव जी को चढ़ा दिया ना जी। हर हर महादेव। काल भैरव जी को जलेबी का प्रसाद चढ़ाया आज महाराष्ट्र की जनता ने। और जो लोग झूठा प्रसाद चढ़ाते थे, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते थे, उनको घर बैठा दिया। चलिए मैं नासिर साहब के पास जाता हूँ। नासिर साहब की बात मान उनको घर बैठा दिया। मैं बीएन के साहब के पास आने के पहले नासिर साहब आपने उंगली उठाई थी। नासिर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे। आई एम कमिंग टू यू बीएन, जस्ट 1 मिनट। ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी की रैली जब महाराष्ट्र में कम हो गई, मोदी जी के चेहरे को महाराष्ट्र के आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। ये लोकल लीडरशिप के थ्रू इलेक्शन लड़ा जाता है, पर महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं दिया। देखिए पाठक भाई, क्या होगा, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोल, आप सुन लीजिए ना बाबा। आप जीत गए, अरे आप जीत गए हैं मगर हार भी गए हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी इतने भी उतावला मत हो जाइए। अभी हम भी मैदान में हैं, इतनी कमजोर खिलाड़ी नहीं है हम लोग, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र छोड़िए। ये इलेक्शन है, 5 साल की बात है, 5 साल में हम 1 कदम पीछे गए तो 10 कदम आगे आएंगे, थोड़ा सब्र कर लीजिए। पाठक साहब आप जीत गए ना, थोड़ा सब्र रखिए पाठक भाई, सब्र रखिए, दिल बड़ा रखिए सर। आप कितने जबरदस्त तरीके से जीते हैं, 231। आपको सब्र रखिए, बड़ा दिल रखिए थोड़ा। बोलिए सुनने दीजिए। हमारे आवाज को बंद करेंगे तो आप लोकतंत्र की आवाज बंद हो जाएगी।
जी बोलिए। तो लोकतंत्र की आवाज को सुन लीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लाडकी योजना जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में जो गया, उससे महिलाओं का एक पक्ष तो इनके तरफ जा रहा होगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है कि क्योंकि हम वादा कर रहे हैं, हम देंगे, ये दे रहे थे। चाहे वो महाराष्ट्र के तमाम प्रोजेक्ट के पैसे को रोक के 3 महीना देते हैं और इसी की तरह रोक देते हैं। जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में जाता है तो जाहिर सी बात है उसका फायदा उन्हें मिल रहा होगा। मगर मैं जो कह रहा हूं, क्या ये किसानों के मुद्दे सही आपने कर दिया? सोयाबीन के किसानों का मसला हल हो गया? तमाम मसले आपकी ही सरकार में है, आपने उन मसलों के लिए क्या किया? कोई आपके पास रोड मैप नहीं था कि उन लोगों के मसलात को हल करते। महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो आज महाराष्ट्र के अंदर है। आप चंद कदम सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई से 100-200 किलोमीटर के आप दायरे में जाए, लोगों की गरीबी देखें, क्या हालात बदल रही है, क्या उसके लिए काम किया है? कोई काम नहीं है, सिर्फ नफरत चला है। आपने सही कहा, दो विचारधाराओं के बीच में एक विचारधारा हमारी थी जो हम मोहब्बत की बात कर रहे थे, एक विचारधारा आपकी थी जो बटेंगे और कटने की बात कर रही थी, एक विचारधारा हमारी थी जो हम बहते थे महिलाओं के अस्मिता को बचाएंगे, एक विचारधारा आपकी थी जो बदलापुर में महिलाओं की इज्जत को लुटा देते हैं, एक विचारधारा आपकी थी जो नवी मुंबई में लोगों की एक विचारधारा आपने कहा है, दो विचारधारा है तो दो विचारधारा मैं सुनाता हूं। एक विचारधारा है जो बीजापुर में दंगा कराती है, एक विचारधारा है जो सांगली में दंगा कराती है, एक विचारधारा है जो भिवंडी में दंगा कराती है, एक विचारधारा है जो देश को मोहब्बत कर सिखाती है, नफरत नहीं। देखिए ये तरीका नहीं है पाठक भाई, दिस इज टोटली रॉन्ग यू टॉकिंग। नहीं ये दिस इज ये फेयर नहीं है, टोटली नहीं। आप बीच में बोलेंगे ये फायदा नहीं है ना, आप समझ पा नहीं। ये मैं देखिए मेरी अजय पाठक जी नहीं कराइए प्लीज, मुर्गा मत लड़ाइए, आप उनको बोलने दीजिए, इस तरह से अजय नहीं। पाठक जी और नासिर साहब, आप तीनों बोल चुके हैं। इनफैक्ट नासिर साहब आपके पास में आप मुझे रोकते हैं तो रोक दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर आप मेरे बीच में मत इजाजत दीजिए किसी को। नहीं, बीच में आप कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बीएन कुमार साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, वो अभी तक जरा भी नहीं बोले हैं। मैं चाहूंगा कि वो जरा अपना विश्लेषण दे दें। बीएन के यू ऑलरेडी लीविंग अस, वेयर यू गोइंग मैन? No. I'm just checking my battery. I won't leave. Okay, fine. You're changing your batteries. Sir, the Congress batteries are really down. What's the matter with you? 9% नहीं है, 25% पे आ गई बैटरी। Sir, 90% आप लोग जीते हो। BNK, go ahead, please. So what happened? Okay. Day before, no, let me remind you. Day before yesterday, आपने बोला था बीएन कुमार साहब कि ये एग्जिट पोल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, इससे मनोरंजन लीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आ गया, अब आप क्या बोलने वाले हैं, बोलो। रिजल्ट तो काफी चौंकाने वाली थी। डेफिनेटली इट इज सरप्राइजिंग, शॉकिंग। जैसे मैंने सुबह कमेंट किया था, इट इज अ सुनामी एंड ऑफ कोर्स इट इज अनबिलीवेबल आल्सो। क्या इस तरह से रिजल्ट आ सकती है क्या? इस तरह की इतनी कम वोटिंग में इतनी सारी, इट इज नॉट कि एक वेव तरह की वेव चल रही थी जैसे इंदिरा गांधी डेथ के बाद में राजीव गांधी के लिए, राजीव गांधी के बाद में कांग्रेस के लिए, बाद में करप्शन को लेकर मोदी को जो मोदी वेव चली थी, उससे भी कुछ वेव नहीं थी। बावजूद कम वोटिंग के होते हुए भी इतना सारा परसेंटेज वोटिंग सिर्फ बीजेपी के पक्ष में गिरा और बीजेपी और एलाइज के पक्ष में। उसमें 3-4 कारण है जैसे हमने एनालाइज किया था। एक तो टोटल पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन। आरएसएस हैज वर्कड एट वेरी ग्राउंड लेवल। हम लोगों ने देखा, हमने सुना भी था, यहाँ पर इवन इन नवी मुंबई बेलापुर में भी आरएसएस के लोग आए थे और वहां पर उन लोग जमा कर रहे थे, अपना लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। नथिंग रॉन्ग इन इट, एब्सोल्युटली दैट इज देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अमित शाह और नागपुर हैज वर्क टोटली। लोकसभा में आरएसएस वाले थोड़ा नाराज थे, वो अपने को दिखा, तो उनका जो नतीजा, अभी अगस्त वाले सक्रिय हो गए हैं, फील्ड में उतर गए और अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, आई डोंट हैव एनी कंफर्मेशन, आरएसएस हेल्ड समथिंग 60,000 मीटिंग्स इन महाराष्ट्र मोबिलाइज करने के लिए। अच्छी बात है, उनकी ग्राउंड फोर्स है, मोबिलाइज करनी चाहिए। कांग्रेस की भी एक जमाने में हुआ करती थी सेवा दल वगैरह, उनको भी वो मोबिलाइज करने की जरूरत है, ये उनके लिए एक सीख है। दूसरी बात, पोलराइजेशन डेफिनेटली हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे छोड़िए, ये हम ये छोड़िए, धर्म के आधार पर बिल्कुल, जैसे अपने आप लोगों ने हर हर महादेव कहा, अब जिलेबी चढ़ाने वाले हो, अपने चैनल में भी इस तरह की डिस्कशन होता है, तो आम आदमी के लेवल में तो बिल्कुल होता ही है, और धर्म के नाम से बिल्कुल हुआ है पोलराइजेशन। और ये कहना गलत है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया।
ये सब चीजें के ऊपर से ये चीज हामी हो गई है। बाकी जो चीजें हमने डिस्कस किया, और लड़की बहन डेफिनेटली यस, राहुल गांधी अपने प्री लोकसभा इलेक्शन में भी, कैंपेन में भी, अपनी यात्रा में भी कह रहे थे टकाटक पैसे आएंगे। वो टकाटक पैसे करने के मध्य प्रदेश में चल रहा था सिलसिला, उसी को महाराष्ट्र में कॉपी की गई, उसको इंप्लीमेंट किया। कांग्रेस ने कहा हम इंप्लीमेंट करेंगे, इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट बैंक में आया, औरत के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ गया। आदमी कितना कठिन से गुजर रहा है, वो किसान हो, बेरोजगार हो, चाहे अनएम्प्लॉयड हो या सेमी अनएम्प्लॉयड हो, या उसके पैसे पूरे नहीं होते हो घर के खर्चा चलाने के लिए, लेकिन महिला के हाथ में पैसे आ गए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट तो 2-3 इंस्टॉलमेंट साथ में आ गए थे। इनफॅक्ट देयर दिवाळी वेंट ऑफ व्हेरी वेल. माय मेड वाज टेलिंग मी, आमचे नातेवाईकांची दिवाळी आमच्या गावात जो आहे एकदम चांगल्या पद्धतीने गेली. म्हणजे दे आर ऑल व्हेरी हॅपी. दो शी इज नॉट बेनिफिटेड, बट शी सिंग ऑल माय रिलेटिव्स इन मराठवाडा, सांगली, सोलापुर ऑल आर हैप्पी. दैट डेफिनेटली हैड एन इम्पैक्ट. सो इस किसी ऐसे चीज है, आप जो बोल रहे हैं, एक सेकंड, खत्म नहीं हुआ है ये, अगर जारी रहेगा. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं अभी, नई मुंबई ठाणे आने वाले हैं, उसमें भी लोग अपने कहने का मतलब बीएन कुमार साहब, आप जो बोल रहे हैं, just one final word from you, आप जो बोल रहे हैं, before I go back to हेमंत कामले, no, I just want to ask one second. कहने का मतलब ये हुआ कि लड़की बहन योजना में जो 1,500 रुपए आए, एक्चुअली 7,500 रुपए आए, 7,500, और अभी ये कहा गया है कि अब से सरकार बनने के बाद से वो 2,100 हो जाएंगे. सो आर यू सेइंग कि जो वास्तविकता में जो समस्याएं हैं, जो नासिर साहब ने गिनाई अभी तक, उनको कवर अप कर लिया गया है? वो बिल्कुल, क्योंकि उन समस्याओं के बारे में क्या समाधान होगा कोई बात नहीं कर रहा है. Those problems remain. That farm crisis, sir, is going to explode in our face. It's a terrible problem. BNK, please go ahead. और एक बात है, एक बात है, और एक चीज है, करप्शन का इश्यू जो है जी, एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इश्यू. वन इंडस्ट्रियलिस्ट ट्राइंग टू गेट एंटायर बेनिफिट्स, अडानी हो, कुछ अंबानी हो, जो भी हो, ये जब चल रहा था, इसके बारे में जो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा जो है धारावी इज लिमिटेड टू मुंबई. धारावी, यू कैन नॉट मेक इश्यू आउट ऑफ धारावी इन औरंगाबाद एंड मराठवाड़ा, नागपुर, वहां की उनकी लोकल समस्या अलग है. तो धारावी समस्या इश्यू इज लोकल इश्यू, एंड आज धारावी में कांग्रेस ने जीती है, तो इसको तो इसमें दो राय नहीं. लेकिन कुमार जी, आप आरएसएस को दोष दे दिया. आरएसएस नेटवर्किंग अच्छा किया, 60,000 मीटिंग किया. सज्जाद नोमानी और नाना पटोले जी का मीटिंग, 17 डिमांड, देन दैट पोलराइज द एंटायर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, इलेक्टोरेट उसमें पोलराइज हुआ कि नहीं? 17 डिमांड्स उसमें आरएसएस के बैन के रिक्वेस्ट थे. जो मुस्लिम समाज के बच्चे जो रॉयट्स में कन्विक्टेड एक्यूज थे, उनको फ्री करने वाली बात थी. डोंट यू थिंक दिस पोलराइज द एंटायर इलेक्टोरेट? एंड दिस इज द रिजल्ट, जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट प्लस पोलराइजेशन. डोंट यू थिंक दैट? सज्जाद नोमानी, डेवलपमेंट एक चीज है, पोलराइजेशन अगर सज्जन उनको उनका जो पोलराइजेशन हुआ है, दिस बीजेपी डेफिनेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दी हिंदू पोलराइजेशन. धर्म आज भी वो लोग कहते हैं धर्मयुद्ध है ये. धर्म का मतलब वही ना, धर्म को यूज करके इन लोगों ने युद्ध जीता हुआ है ना. तो धर्मयुद्ध मैसेजिंग जो है धर्म के नाम पे, बिल्कुल उनके लिए काम किया है, उसके ऊपर दो राय नहीं है. सर, मुझे तो ऐसा लगता है करप्शन इश्यू आपने हेमंत कामले साहब, जो वास्तविकता की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी तक जूझ रही है, दो चीजें हैं. एक तो मुंबई में एंट्री टोल फ्री कर दी सारी की सारी, उसके अलावा पानी की जो समस्या है नंबर 2, नंबर 3 किसानों की जो समस्याएं हैं, रोड्स की जो समस्याएं हैं, वो तो वैसी की वैसी रही ना सर. हेमंत कामले साहब, ये देखिए ना, आपने इतनी समस्या गिनाई और इस सब के लिए हम हमेशा आंदोलन करते रहे, हमारी मांगे रही. उसमें से देखिए पिछले 12 साल से हमने जो लड़ाई लड़ी थी टोल फ्री के लिए, तो वो टोल सरकार ने पहले मतलब इलेक्शन के पहले कुछ दिन पहले उन्होंने उसको बंद कर दिया जी. लेकिन क्या किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? 600 रुपए बढ़ा के मांगे, 600 रुपए बढ़ोतरी मांगी है. सवाल ये है ना, यहाँ पर पोलराइजेशन की बात हो रही है ना, तो सज्जाद नोमानी उधर अलग बैठक कर रहे थे. ये जो लोकसभा के इलेक्शन में भी गया है, तो एक तो लाडली बहन और दूसरी बात तो ये भगवा विरुद्ध फतवा 14 तक
जो कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ है, यूपीए के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, फिर 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, निर्भया हत्याकांड, अन्ना हजारे का लोकपाल बिल, ये 5 मुद्दे को जिस तरह से उछाला था और उसके बाद जो मेजोरिटी आई थी, फिर 2019 तक आपने देखा क्या हुआ, फिर 2019 से लेकर 2022 में महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये सब बातों को ध्यान रखते हुए और पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को कहीं ना कहीं पोल्यूटेड किया गया, इट इज द पॉलिटिकल पोल्यूशन, कि आपने जिन पर आरोप किया था अजित पवार को साथ में लेके, और अजित पवार आज निखर गए पूरी तरह। आपने शिवसेना के जो टुकड़े किए, उसके बाद जो गद्दार का स्टैंड था वो आपने निकाल दिया। आज की तारीख में जो एनसीपी थी वो अजित पवार जी को दे दी, और जो शिवसेना थी वो एकनाथ शिंदे को दे दी। आपके पास अब मेजॉरिटी है, इस महाराष्ट्र को आप अभी आता तुम्हें गोमट बनवा, गोमट या महाराष्ट्र का भला करा, इस महाराष्ट्र को हमने जो ब्लूप्रिंट बनाई थी 2014 में, उसके जितने भी पॉइंट पर हमने काम किए थे, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसका चांस है कि आपके पास पावर भी है, आप बना दीजिए वो। आपको ये 1500 रुपए और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1500 रुपए में ना, महिला को 1500 नहीं 2100 दो, लेकिन उसकी बेटी को सुरक्षा भी दो। तो हेमंत जी, हाउ डू यू आत्महत्या हो रही है हर साल 5 से 6 हजार आत्महत्या, वो आत्महत्या को बंद कराओ। आज के बाद कोई अपोजिशन को आप इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े नहीं हो जाएंगे, आपके सामने कोई अपोजिशन नहीं होगा। हेमंत जी, आप लोगों के वर्डिक्ट कैसे देखते हो हेमंत जी? व्हाट इज द पीपल्स वर्डिक्ट? दुर्भाग्य से लगता है कि भाई आज के बाद, मतलब इस रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र में कोई अपोजिशन लीडर नहीं होगा, और शायद हमारे जो भाजपा के जो ये वो खुश होंगे, क्योंकि 2014 में भी लोकसभा में विरोधी पक्ष नहीं था, विरोध पक्ष नेता नहीं था, लेकिन क्या इससे लोकतंत्र टिकेगा? बट आप हेमंत जी कैसे देखते हो आप? व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल? वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, क्या द ओरिजिनल शिवसेना अभी एकनाथ शिंदे सेना है? आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, वो तो आपको अगर थम्पिंग मेजॉरिटी मिली है, तो आप समझिए, अगर आपको ये लगता है कि जनता ने आपको जो मेजॉरिटी दी है वो आपके काम की वजह से दी है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है। जिन जिन मुद्दे पर आपने जो बात कही है, उन मुद्दे को आपको करके दिखाना पड़ेगा। हेमंत जी, लोगों के वर्डिक्ट को आप कैसे देखते हो? इज द ओरिजिनल सेना अभी एकनाथ शिंदे सेना ओरिजिनल सेना हो गया, अजित पवार के एनसीपी ओरिजिनल एनसीपी हो गया? क्या लोगों के वर्डिक्ट यह है कि शरद पवार साहब से ज्यादा विश्वास अजित पवार में है, उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा विश्वास एकनाथ शिंदे जी में है? क्लियर कट वर्डिक्ट आपको क्या लगा? हाउ डू यू रीड द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल? नहीं, इस तरह से किसी की ओरिजिनलिटी पे आप स्टैंड नहीं लगा सकते हो। जिस तरह से पिछले 2-2.5 सालों से जो मामला कोर्ट में चल रहा था, ये सब चल रहे थे, लेकिन एक बात है कि इस इलेक्शन में जनशक्ति, उसके अगेंस्ट में जनशक्ति का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, तो मुझे लगता है अब तक, मतलब मेरी जिंदगी में जितने इलेक्शन देखे, मैंने इस तरह से धनशक्ति का उपयोग अब तक देखा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं धनशक्ति का भी उतना ही ये इम्पैक्ट दिख रहा है इस रिजल्ट के ऊपर। राइट। अजय पाठक जी, आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि अब आप सब समस्याओं से जूझेंगे और उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। लेकिन ये बताइए सर, सबसे पहली समस्या ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जी कौन होंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस जी अगले मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के? अजय पाठक जी। राजीव जी, मैं दोनों सवालों का आपके जवाब देता हूं। बोलिए सर। पहले मैं हमारे जो भाई हैं, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2014 में जो लोकसभा में हुआ कि विपक्ष का नेता नहीं था, और अभी यहाँ पे हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो तय करती नहीं है, तो ये तो विपक्ष को तय करना है ना कि चुनाव, या तो इस महाराष्ट्र की जनता को तय करना था। महाराष्ट्र की जनता उनको इस लायक भी नहीं समझी
कि इनको विपक्ष में बैठाया जाए, विपक्ष का नेता इनको कम से कम उतनी सीटें मिले जिससे विपक्ष का नेता इनका बने। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता का वर्डिक्ट है, ये तो महाराष्ट्र की जनता ने ये चुन करके दिया है। ये कोई पार्टी तो कोई किसी के लिए चुनती नहीं है, ये पार्टी के क्राइटेरिया से बाहर की चीजें तो महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है। दूसरी चीज, जहां तक डेवलपमेंट की बात है या महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या, अगर महिलाओं या किसानों की समस्या पहले से कम नहीं हुई होती, पहले से बेटर नहीं हुई होती, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विक्ट्री मिलती नहीं। विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस या शरद पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब जो भी कहना हो वो कहते रहे। चुनाव हम भी लड़ रहे थे और आप भी लड़ रहे थे, निर्णय तो जनता को करना था। जनता ने जिसको बेटर समझा कि हमारी समस्याओं को ये बेटर तरीके से सुलझा रहे हैं और इनके राज्य में हम अच्छे सुरक्षित हैं और इनके राज्य में किसान सुरक्षित है, इनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित है या महाराष्ट्र सुरक्षित है, उनको दोबारा उन्होंने चुन करके दिया। तो इसमें जबकि 2019 में भी हम ही को चुन करके दिया था, वो तो उद्धव साहब ने गद्दारी की और आज उनका हिसाब महाराष्ट्र की जनता ने बराबर किया। दूसरी चीज है जो मुख्यमंत्री बनने का सवाल है जी। देखिए, हमारी पार्टी ने, तीनों पार्टियों ने मिलकर के दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें देवेंद्र जी ने साफ उन्होंने बोला कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड बैठेगा और इस पे वो डिसीजन करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम 232, 33, 35 सीटें जीते हैं तो मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। ये हमारी भावनाएं हैं, लेकिन फाइनल जो है वो तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तीनों पार्टियों के सामंजस्य से मुख्यमंत्री बनेगा, इस महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे 2.5 साल में हमने काम करके दिखाया, वो जो सारे प्रोजेक्ट विद इन वीक जब इनकी सरकार बनी तो सारे मेट्रो से लेकर के हाईवे तक के जितने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट थे, सारे प्रोजेक्ट को रोकने का काम उस महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया। इसीलिए उनके लोग टूट करके आए, जो असली शिवसेना थी वो हमारे पास आए। और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने उस शिवसेना को बताया कि तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ नकली शिवसेना कौन है। एनसीपी को भी उसी तरह से, एनसीपी सिर्फ लेगेसी से नहीं चलती है चीजें। तो कहने का मतलब ये हुआ परिवार की पाठक साहब चाहे वो करेंगे। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे दोबारा बने। असली नकली तय कर दिया, गद्दार और वफादार तय कर दिया, ये तो जनता ने तय किया ना। पाठक साहब कहने का मतलब ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जी दोबारा बन सकते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है ये तो तीनों पार्टियों के लोग मिलकर के तय करेंगे। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके तय करेगा। नासिर साहब की मुझे लग रहा है तबीयत भी खराब हो रही है। हमारी भावना है जी, नासिर साहब बोलिए प्लीज। हमारी ये भावना है कि पाठक साहब एक सेकंड मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ये हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की भावना है। I would personally like to see Mr. Fadnavis as CM. जी, I would personally like to see Mr. Fadnavis as CM. जी, नासिर साहब आप बोलें प्लीज। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आपसे पहले किसी भी डिबेट में हम लोग जाते थे, चाहे पाठक जी होंगे चाहे दूसरे 2 पैनलिस्ट होंगे, तो लोग कहते थे एकनाथ शिंदे ही हमारे चेहरा है, आपके पास कौन है, आपके पास कौन है। आज उनका नाम लेने से सभी भाग रहे हैं। किसी को तो पीठ दिखाना बोलते। मैं कहता था ये वो अभी टेम्पररी नाम है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये नाम लेना छोड़ देंगे। आपके ही चैनल पे कहा होगा, मैं दूसरे चैनल का क्यों मैं अभी आपको रेफरेंस दूं, आपके ही चैनल पे लोगों ने कहा कि हमारे चेहरा एकनाथ शिंदे हैं, आपके तरफ से कौन है। आज क्यों नहीं नाम ले रहे हो, क्यों डर रहे हो? आज आपको डर लगने लगा क्योंकि उनको यूज कर लिया। बीजेपी यही तो है, यूज करके फेंक देती है, ये है। और अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा, मुझे नहीं मालूम, सजाद नोमानी की बात की। मैंने कई बार कहा सजाद नोमानी का जो लेटर है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया और मार्केट में फैब्रिकेट किया और लोगों को दिया। कोई हमारा सजाद नोमानी से रिलेशन नहीं था, कोई हमारा एग्रीमेंट उसके साथ नहीं होता है, कोई हमारी बात। देखिए पाठक भाई, ये बड़ी गंदी आदत है आपकी बीच में बोलने की। मैं इज्जत करता हूं पाठक भाई, इस तरह मत करा होगा प्लीज। अगर आप बोल रहे हो तो आप ही बोलो, फिर मैं चुप हो जाता हूं। आपको जितना बोलना है बोलते रहो। आप बोलिए ना सर, नासिर साहब बोलिए। मगर आप मेरे वक्त को जाया करते, ये अच्छी तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। फिर
फिर तो आपने सुजात नोमानी की बात की, उसको न्यूज उन्होंने चलाया, दूसरे दिन हम लोगों ने कहा इस तरह की समर्थन हमें नहीं चाहिए, हमारी को समर्थन चाहिए तो महाराष्ट्र की आवाम की चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों की चाहिए। हम उलमाओं का कोई समर्थन मांगने नहीं गए थे, पर आरएसएस ने जो काम किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आरएसएस ने किया, पर आरएसएस को इसलिए ये सरकार नहीं चाहिए था। आपको मालूम है आरएसएस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, वो अपनी एक बहुत बड़ा एक जलसा करने वाली है, पूरे हिंदुस्तान को वहां बुलाना चाहती है। उस जलसा में ये वो नहीं चाहते थे कि वहां अपोजिशन की सरकार आ जाए, उसमें उनके प्रोग्राम में कोई खलल पैदा हो जाए, इसके वजह से जो ये साजिश रची गई, इसका वो मैंडेट है। आप ये लोग क्यों नहीं आप बताना चाहते हो कि ये लोकतंत्र को किस तरह से मैनिपुलेट करके जीता हुआ चुनाव है? ये कोई आवाम वैसी मैंडेट नहीं दे सकती है। आप तमाम लोग इनके खिलाफ हो, इस तरह की मैंडेट आ जाए, कोई सपने में भी तसव्वुर नहीं कर सकता है। आप एक एक लोगों से बात करिए, कौन किसके, और जिसे गद्दार कह रहे हैं उन्हीं गद्दारों को भी लोकसभा के इलेक्शन में लोगों ने, इसी जनता ने रिजेक्ट किया था ना। चंद सीटें फिर बिछड़ गए, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम इस पे हमसे कमी है, मगर आज भी कह रहे हैं मुद्दे वो जिंदा है जो मुद्दे जिंदा है। थोड़ी सी सीटें हमसे बहुत ज्यादा आ गई, 50% वोट शेयर आपकी बढ़ गए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये पूरे बैकडोर से आरएसएस के लोग इसको काम कर रहे थे। कुछ इसी के अंदर आप इलेक्शन कमीशन, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से हमारे लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाने में की मदद की, ये हमने देख लिया। सब आरएसएस के लिए अब काम कर रहे हैं, करने दीजिए, कल हम पे भी केस होगा क्योंकि हम एलिगेशन है, हमें परवाह नहीं, कई केस हो जाए, मगर जो सच है, सॉरी क्या बोला, बहुत भारी नुकसान हो गया तीनों को, भारी। उन्होंने कहा वोट जिहाद के अजीज सिपाही शरद पवार, वोट जिहाद के अजीज सिपाही उद्धव बाला साहब ठाकरे और वोट जिहाद के अजीज सिपाही नाना पाटोले जी, ये तीनों को क्या ये बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ इलेक्टोरेट में? जो वोट देने वाले थे इस चीज को बहुत धर्म युद्ध की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, वोट जिहाद की बात भारतीय जनता पार्टी, हमने तो नहीं कहा था इन सब अल्फाजों को, हम तो तरक्की याफ्ता की बात कर रहे थे, हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, हम किसानों की बात कर रहे थे, जो कंपनियां गुजरात शिफ्ट हो रही थी उसकी बात उठा रहे थे। ये सब अल्फाजे थे, ये धर्म युद्ध है, ये एक वोट जिहाद, इस तरह की बहुत है। हम तो तरक्की की बात कर रहे थे, पर मैं कह रहा हूं ना, ये पूरा पोलराइजेशन के थ्रू ये चुनाव जीता गया है, ये नफरती तरीके से चुनाव जीता गया है, कटेंगे कटे का नारा देके चुनाव जीता गया है। देखिए, जातियों में बांट रहे थे, जातियों में बांट रहे थे। राहुल गांधी जी पे आरोप है जातीय जनगणना के माध्यम से आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो आज भी हमारे मुद्दे जिंदा है, हम जाति जनगणना की बात करेंगे। जब पेड़ों के, दरख्तों के, जमीन के सबकी गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं होगी? और जातियों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह सकती है? क्या उनके पास एससी मोर्चा नहीं है? क्या उनके पास ओबीसी मोर्चा नहीं है? उनके पास हर धर्म के मोर्चा नहीं है? तो क्यों आपने जातियों की मोर्चा बनाई है? बंद कर दो ये मोर्चों को। तो धर्म की बात तो सब करता है, मगर कहने से सब डरते। मैं कहता हूं जिसकी हिस्सा उसकी उतने हिस्सेदारी की बात करते, उसकी गिनती करो, कौन कितना है, उसके हिसाब से उसको हक दो। मैं आज भी बोलता हूं 75% का जो 50% का जो रिजर्वेशन कैप है उसको हटाना चाहिए। वो आज भी हमारे मुद्दे जिंदा है, वो मुद्दे से हम थोड़ी हट रहे। हम कहते हैं जाति जनगणना बिल्कुल होगा, जब भी हम सत्ता में आएंगे हम जाति जनगणना उस पर हम अटल हैं, वो हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा है, हम उससे थोड़ी पलट गए। ये चुनाव हार जाने से वो मुद्दे खत्म नहीं हो जाएंगे बजाज भाई। अरे नासिर साहब, वो तो राजीव जी, अरे मैं आ रहा हूं आपका फाटक साहब, एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट, 1 मिनट ओनली। नासिर साहब, ये भी एक बहुत बड़ी चीज लगाई गई, आरोप लगाया गया, आरोप ही नहीं सामने था। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने, स्पेशली उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा था कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम धारावी का कॉन्ट्रैक्ट एकदम कैंसिल कर देंगे। ये कहा गया है कि जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सब लोगों ने अपनी पूरी भारी भरकम शक्ति लगा दी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति में आपको हराने के लिए। क्या ये बात सच है? नहीं, ये अगर होता तो हम धरावी हार जाते ना चुनाव, वहां धरावी में क्यों जीत के आ गए?
ये मुद्दा नहीं होता, एक मुद्दे से सर, नहीं आप होता। ही के गौतम कांग्रेस अडानी के- का करप्शन सर, सामने आप ही के कांग्रेस आपने के- देखा है। नहीं नहीं, इतनी बड़ी करप्शन हमने लगाते तो चलो, यूएस ने भी लगाया, जो आप जिसको दोस्त बोलते थे, मित्र बोलते थे, उस अरेस्ट वारंट निकल गया, पर आपने उस पर जवाब नहीं मांगा किसी से कि गौतम अडानी के अरेस्ट वारंट निकल जाता है, इतना बड़ा करप्शन करता है कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। किस किस तरह के बोलते, ये महाराष्ट्र में जो वोटरों को पैसा देके लुभाने का काम किया गया, पैसा देके लोगों को रातों रात खरीदने का काम हुआ है, वो बोलते एक नंगा नाच चला है पैसों का। इतनी महंगा इलेक्शन हिंदुस्तान में अगर आज भी जांच हो तो कभी नहीं हुआ होगा जिस बार इस बार हुआ है। एक एक वोटरों को जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया, मैं आज भी बोलता हूं ये पूरा मैनिपुलेटेड जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। हम देख रहे हैं ये किस तरह की जीत हो रही है। आज जश्न का दिन है, मना लीजिए, मगर मैं कहता हूं ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी नहीं है। इस तरह की मैंडेट नहीं आ सकता है, जिस तरह से लोग खिलाफ और ऐसे मैंडेट आ जाए तो मतलब नहीं रह जाएगा कल लोकतंत्र का ये इलेक्शन का कोई भी बात। कहने का ये मतलब हम ये कल भी हुआ, कहता था, आज भी कह रहा हूं मैं। कहने का मतलब ये हुआ, नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के और हेमंत कामले साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। हेमंत कामले साहब ने कहा कि इतना ज्यादा पैसा किसी इलेक्शन में खर्च होते हुए मैंने नहीं देखा, हेमंत कामले साहब ने कहा। नासिर साहब ने भी तकरीबन वही बात करी, लेकिन ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बात करी, इलैबोरेट करके। तो सर, इसमें पैसे का कितना खेल था सर, अजय पाठक साहब? देखिए, पैसे का खेल तो यही लोग जानते हैं और यही लोग बता सकते हैं कि पैसे का कैसा खेल था। जहां तक दूसरी इन्होंने बात किया जी, बाकायदे 17 मांगे उलेमा काउंसिल ने लिख करके दिया और उसने प्रेस एक करके फेक बोला न्यूज़ है पाठक भाई, वो फेक न्यूज़ है। प्रेस करके बोला उलेमा काउंसिल ने कि, और एक चिट्ठी भी वायरल हुई, सबको पता है कि उसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष की साइन के साथ एक चिट्ठी भी वायरल हुई। अब उसकी सत्यता क्या है, फेक न्यूज़ है, आपको कई बार बोला सबके सामने आ गई, सबके सामने आ गई है। दूसरी चीज, ये जो बातें कर रहे हैं नासिर साहब, जो बातें कर रहे हैं, यही सारी चीजें, यही सारे मुद्दे तो लेकर के ग्राउंड पे गए थे। अब इनके प्रॉब्लम क्या है कि जहां इनको सरकार बना ले, तेलंगाना में बना ले तो चुनाव आयोग अच्छा है, और कर्नाटक में बना ले तो चुनाव आयोग अच्छा है, झारखंड, उधर हिमाचल में बना ले तो चुनाव आयोग अच्छा है, और जैसे ही महाराष्ट्र में नहीं बनाया वैसे इनकी बैटरी डाउन हो जाती है कि भैया यहाँ तो सब मायने गए, 50% वोट कैसे मिल सकता है, वोट कैसे मिल सकता है, 50% वोट तो मिल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, सब मायने गए। वो सब कुछ इनको फिर दिखने लगता है। झारखंड जीत जाए तो वहां पे सब लोकतंत्र अच्छा है। हम झारखंड की जीत के लिए कहा पाठक भाई अभी आपसे कि अगर आप मुझे बैटिंग ग्राउंड देंगे, राजीव जी, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वहां लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाता है। जैसे हमने कहा सर 10 बजाज भाई, अभी कहा हमने क्यों बैटिंग ग्राउंड दे देने से ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे। ईवीएम 10 जनपद की महारानी हो जाती है, जीतते ही ईवीएम 10 जनपद की महारानी हो जाती है, और जैसे ही चुनाव हारेंगे ईवीएम इनके लिए गायब हो जाती है। यही पाठक साहब तरीका है, और यही आपको डिसफर करें तो 20% हमारा, लोग 80% आपके लाडकी बहन, ये आप करते हैं। जब हिंदू इकट्ठा हो गया एक साथ देख ली, मैं इस पे ऑब्जेक्शन लेता, इस पे बजाज भाई मेरा ऑब्जेक्शन है। बजाज भाई ये कॉमनल बात नहीं कर सकते पाठक भाई कि हिंदू हमारा है मुस्लिम तुम्हारा, ये कॉमनल बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप हिंदू मुस्लिम मत करिए चैनल पे बैठ के, आप बात करिए लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से। मेरा मैं बोल रहा हूँ एकदम कठोर ऑब्जेक्शन है मेरा। नहीं नहीं, इस तरह की बातें नहीं हो सकती बजाज भाई, हिंदू मुस्लिम बात बर्दाश्त नहीं होगा। आप अभी चुनाव जीते हैं, ठीक है, मुबारक, मगर आप गलत बात मत बजाज भाई, गलत बात नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम बात नहीं होगा। नहीं पाठक भाई, हिंदू मुस्लिम बात नहीं होगा। अपने मुद्दे पे बात करिए, क्यों हिंदू का बीच कर रहे हैं? क्या हिंदुओं ने हमें वोट नहीं दिया? आप कैसे कह सकते हैं 33% वोट मिला है हमें? नहीं, आपको 33% हमारे महाविकास आघाड़ी को मिला है, क्या हिंदुओं का वोट नहीं है? आप क्यों हिंदुओं की बात कर रहे हैं?
नहीं 33% वोट कौन है, और किसने वोट दिया है? ठीक है, गलत बात बयानबाजी कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे। हेमंत कांबळे जी, हेमंत कांबळे जी, ये पूरे इलेक्शन में नहीं की बात नहीं है। लाडकी बहन एक सक्सेस था, लाडकी बहन, लाडका भाव, लाडकी बहन के बाद लाडका भाव हो गया, फिर लाडका शेतकरी हो गया। हेमंत जी, हेमंत कांबळे जी, हेमंत कांबळे जी, आप उसको लाडका भाव, ठीक है, लगा रहे हैं क्या लाडकी बहन तो नहीं कर रहे हैं, लाडका शेतकरी, हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे हैं, 80% 20% की बात तो नहीं कर रहे हैं। 50 लाख लखपति दीदी, 50 लाख लखपति दीदी, क्या ये लोग विश्वास करने लगे? हेमंत कांबळे जी, क्या लोग विश्वास करने लगे? भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुस्लिम किए कोई चुनाव जीत लड़ ही नहीं सकती है, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। हेमंत जी, क्या पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुस्लिम यही चाहते हैं, मुद्दे के पांचवा का मुद्दा ही नहीं है। पाठक जी सर 2 मिनट हेमंत जी से पूछे, पाठक जी ये क्या मुद्दा है आपके पास? अभी आपने एक चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही पाठक भाई इस तरह की बात करके? हेमंत जी, अरे 33% वोट हमें मिलता है, क्या हिंदुओं का वोट नहीं होगा उसमें? 20% हमारा, 80% बंटवारा। किसने कहा 80-20? किसने किया? आपने किया होगा, हमने तो नहीं किया 80-20 की बातें। 80-20 की बातें आपने की होगी, हमने तो नहीं किया है ना। पाठक साहब, आप जीत चुके हैं, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। चली गई थी सर। देख लीजिए, यही तो नफरती लोग हैं कि अपने संविधान को भी झूठा बोलते हैं, यही तो हम नफरत, इसीलिए तो हम इनसे बात करते हैं। जो अब इतनी हिम्मत कहां से इसको आती है जो अपने संविधान को झूठा बोलता हो, यही तो मैं कहता हूँ। ये अरे सुन लीजिए, आप अपने ही संविधान को गाली देने वाली कोई पार्टी है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसी संविधान को आरएसएस ने जलाया था, इसी की तो हम नफरत करते हैं। इसी आरएसएस ने इस संविधान को मानने से इनकार किया था। इसी वो आरएसएस है जो भारत के झंडे को फहराने में शर्म आती थी। वो कैसे लोग हैं? अपने ही आज तक और संविधान में बंटवारा करने वाला पहली पार्टी होगी हिंदुस्तान की जो अपने संविधान को झूठा और फेक संविधान बोलती हो। ये कौन लोग हैं? इतनी हिम्मत कहां से आता है जो अपने संविधान को नकली बताता हो? के लिए बहुत बहुत कौन दे रहा है इसको? प्रियंका गांधी की जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद। कैसे पता चला? आपने संविधान पढ़ा है क्या कि वो नकली संविधान? अरे सर, एक सेकंड, कॉपी मंगा लेते। बजाज भाई, आप मुझे आप भी आज एड्रेस भेजिए, मैं कल पाठक भाई को वो पोस्ट के थ्रू भेजता हूँ, आप पढ़ लीजिए वो असली या नकली। फिर मैं भेज देता हूँ। नहीं, आपको मैं वही कॉपी भेजता हूँ, सेम टू सेम कॉपी भेजता हूँ, आप पढ़ लीजिए। देखिए, कुछ तो लिहाज करिए। आप देश के पवित्र किताब की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, थोड़ा तो तमीज रखिए। आप संविधान को नकली बोल रहे हैं, यानी इस देश के लोकतंत्र को आप गाली दे रहे हैं। आपको थोड़ा तो जिस संविधान के लिए कितने लोगों ने अपनी जान नशी कर दी, कितने लोगों ने जेल के अंदर अपने जाने गंवा दी, संविधान को आप गाली दे रहे, थोड़ा तो लिहाज करिए। चुनाव जीत जाने से संविधान संविधान की इज्जत वही रहेगी जो नासिर हुसैन साहब, करने का आपकी बात आ गई है। अरे आपने कभी अरे नासिर हुसैन साहब, आपकी बात आ गई ना। अजय पाठक जी, एक सेकंड, जो संविधान मानते हो, अरे नासिर हुसैन साहब, आपकी बात आ गई। क्या बात कर रहे हैं आप? ओके सर, फाइन, शांति, टाइम आउट, जेंटलमैन, साइलेंस, कैन आई हैव साइलेंस फॉर अ मिनट? यहाँ पे इमरजेंसी कुछ भी, एक मिनट का साइलेंस सर, जेंटलमैन प्लीज, कुछ भी बोलिए आप। चुनाव जीत बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे नासिर साहब, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे तो यहाँ पर रात के 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। फिलहाल हेमंत कांबळे साहब, हेमंत जी, क्या लाडकी बहन के बाद लाडकी बहन, लाडका भाव, लाडका शेतकरी, लाडका शेतकरी, उसके बाद 50 लाख लखपति वालों का तो वादा किया था, वादा किया था सेंटर भाई। जब बाबा साहब अम्बेडकर किसने दिया तो पार्टी का नाम बताइए। नहीं, अभी बजाज भाई आप इतिहास के पन्नों से वो नाम निकालिए। बाबा साहब, आप उन उम्मीदवारों का नाम बनाइए, किसने उसमें चुनाव लड़ाया था? आरएसएस ने क्या उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था? आप बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उम्मीदवार आपने दिया या था, नहीं दिया था? अजय पाठक साहब जा चुके हैं, आई थिंक
हेमंत कामले जी बोलिए। हेमंत कामले जी आप भागना ही पड़ेगा ना सर, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते ना वो। लाड़की बहन के बाद लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, और अल्टीमेटली संकल्प पत्र में 50 लाख लखपति दीदी बनने का प्रॉमिस किया था दिस महायुति ने 2027 तक। क्या लोग उस जासे में आ गए? लोग स्टार्टेड बिलीविंग। हेमंत जी, क्या लोग बिलीव करने लगे? बिकॉज इंस्टॉलमेंट 5 आ गया था लाड़की बहन का, तो ये लखपति दीदी 50 लाख बनाने वाले हैं, वो भी लोग मानने लगे। You think this will be a big game changer, हेमंत जी? तो देखिए अभी क्या है ना कि नतीजे तो पूरी तरह आ गए, पंपिंग मेजोरिटी मिल गई। अब एक काम करेंगे, हर महीने इनको इनका जो मैनिफेस्टो है वो एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस सबको हम पोस्ट करते रहेंगे कि ये आपका मैनिफेस्टो है, जो आपने लोगों को वचन दिए थे उसको आप पूरा कर दीजिए। लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का किसान, लाड़का विद्यार्थी, लाड़का जीजा, लाड़का और क्या जितना रहेगा सब योजनाएं आप चालू करिए, लेकिन जो आपने यहाँ पर वचन दिए थे, जो वचननामा था, आपका जाहीरनामा था, मैनिफेस्टो था, उसको पूरा करिए। बस इतनी अपेक्षा रहेगी, क्योंकि अब तो आपके पास अपनी मेजॉरिटी है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1500 से 2100 दे रहे हो, तो इतने पैसे हैं 8 लाख करोड़ की कर्जे में जब महाराष्ट्र है, उसके बावजूद आपके पास ऐसा कौन सा प्रोविजन है वो पता नहीं है कि कहां से पैसे लेके आने वाले। आप जिस तरह से मुफ्त में बांट रहे हो, किसको पूछते हो आप? जब टैक्स पेयर के पैसे से जब यहाँ सरकार ही चलती है, तो आप 1500 रुपए दे रहे हो, उसके बाद 2100 रुपए दे रहे हो, किसको पूछ के? और ये सब करना ही था तो आखिरी दौर में क्यों किया? आखिरी 4 महीने में क्यों किया? 5 साल की आपकी सरकार चली, मतलब 2-2.5 साल तो आपने चला, पिछले 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक आपकी सरकारें थी। तो जो भी ऐसे मुफ्त के वादे करते हैं उनको सबको मुझे कहना है, फिर वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, ये मुफ्त की योजनाएं बंद करिए और लोगों को सक्षम करिए। फिर वो लाड़की बहन हो, लाडली बहन हो, तो लाडला भाई हो या लाडला किसान हो, सबको सक्षम करिए और ऐसी मुफ्त के चंदन बांटने के कम कर दीजिए। बस धन्यवाद। मैं कहीं और चैनल पे जाना चाहता हूँ, तो भाई को भी डिसअपॉइंटेड सर। एक चीज से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि MNS could not get 5 or 6 seats as we were expecting. लेकिन there's always the next time. We know you will continue working in the same manner. हेमंत कामले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। You are a very civilized and cultured person, and I know you will continue working for this state as you have done always. Thank you, sir. नमस्कार। BN कुमार साहब, आपने नासर साहब को सुना, आपने अजय पाठक साहब को भी सुना। Now, the questions that Nasser साहब is raising, they are very fundamental questions. ठीक है, चुनाव जीत गए, लेकिन those questions remain, and this is going to blow up in everybody's face. मेरा ये कहना है भाई, लाड़की बहन योजना की वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से जीत गए, अब आप 2100 रुपए देने वाले हैं, which means can you imagine the monthly bill on the budget? Where are we going to get the money from? ये पैसे कहां से आने वाले हैं सर? BN कुमार साहब बताएं। In fact, Prime Minister himself has said a long time ago, he kept on repeating, इस तरह का freebies के हिसाब करते रहेंगे तो it will give a big dent on the economy. इकोनॉमी बजट के ऊपर बहुत बुरी असर पड़ने वाला है। मैं पर्सनली इन चीजों के खिलाफ हूँ, बावजूद उसके वो खुद ही अनाउंस करते हैं और अपने पार्टियों को मतलब he doesn't stop from this kind of schemes being implemented. और एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन रिजल्ट अभी आया है बेलापुर सीट से अपना हमारे नवी मुंबई में। There Sandeep Naik was trailing by about 500 votes. You know, and in the last round. Yes. So Sandeep Naik of NCP. And Nanda Matre is the BJP candidate. Sandeep Naik has demanded a recounting. Yes. Recounting में वो मार्जिन कम हो गया, 355 हो गया उसका। जी। मैं जैसे कि भाई साहब कह रहे थे मैनिपुलेशन और ये हो रहा है, मतलब I will not say manipulation, but how is the counting come down? Recounting में मार्जिन कम हो गया है। How is the margin come down? मैं इस पे जवाब 1 मिनट दीजिए मुझे। बजाज भाई, बेलापुर की बात की, संदीप नायक इज माय गुड फ्रेंड और मंदा ताई भी मेरी बहुत नजदीक, पर आप 28 राउंड के बाद 538 वोट से संदीप नायक आगे था 28 राउंड में, जो उसके बाद कोई राउंड ही नहीं बचता है। मंदा ताई ने रिकाउंटिंग मांगती है और वो जीत जाती है।
ताज्जुब है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है कि 538 वोट से वो लीड कर रहा है संदीप नायक, वो कैसे 28 राउंड के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, 20T बी फॉर्म पे साइन हो जाता है और रिकाउंटिंग में वो हार जाता है। तो ये मैनिपुलेटेड है। मैं बार बार कर रहा हूं, ये चुनाव ऐसे नहीं हो सकता है जहां तमाम आवाम उनके खिलाफ हो, अब 50% वोट शेयर हो जाए। इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल है। वोट जिस तरह से हमारे लोगों का नाम काटा गया है, हमने इसी में राइटिंग में दिया। ऐसा नहीं कि मैं चैनल पे आके सिर्फ ब्लेम कर रहा हूं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख कर दिया है कि हमारे इन इलाकों में हमारे लोगों का नाम काटा गया है, और जिस तरह से रेड लाइन करके कि उसका कॉपी सबमिट किया है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 99% बैटरी की बात करके इनकी मजाक उड़ाई, तो 99 बैटरी की हमने इलेक्शन कमीशन में वो लिख कर दिया। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया। जो सुबह से शाम तक बैटरी यूज हो वो रिड्यूस क्यों नहीं हो रही है? वो 99 कैसे रह सकता है? दिन भर ईवीएम पे बैटिंग होगी, वोटिंग होगा और वो मशीन 99% चार्ज होगा? इम्पॉसिबल है सर। तो ये पूरा मैनिपुलेटेड है। हमें बैटिंग ग्राउंड देके झारखंड जिता दो तो हम यहां के मुद्दे खत्म कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। जो ऑब्जेक्शनबल है हम ऑब्जेक्शन लेंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं। मैं आज एनडीटीवी पे गया, आज तक पे गया, तमाम चैनलों पे यही बात कहा है जो आपके पास कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कह रहा, और तमाम हमारे प्रवक्ता यही बात बोलेंगे जो मैं कह रहा हूं। ये हमारी पार्टी की लाइन है, हम इसे 1 इंच से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आप हमें 2 राज्य और भी जिता दो, तब भी हम ये बात कहेंगे कि ये इलेक्शन मैनिपुलेटेड किया गया है। लेकिन नासिर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे मित्र जितने भी हैं, प्राइवेटली वो खुद एडमिट करते हैं कि ये कैसे हो गया यार। मतलब ये तो उनको भी खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि 231 232 सीटें कैसे आ गए। नहीं आ सकता है सर, नहीं आ सकता है। आप एक मिनट और देखिए जी। नहीं, एक मिनट। नहीं, जैसे आपने कहा झारखंड में इंडिया गठबंधन जीती है, तो उसका भी तो श्रेय तुमको देनी चाहिए ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजीव, we are nation now, we are not Mumbai now. Let us discuss beyond Mumbai and Maharashtra also, and they have done fantastic well in Jharkhand. वहाँ भी यही चीजों को राहुल गांधी ने उठाया था, जाति जनगणना और ऑल दिस कास्ट इश्यूज। वहाँ पर बिल्कुल, वहाँ पर काफी सारी जातियां हैं, हर जगह हैं, वहाँ पर वो उसको समर्थन मिला, यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर शायद आरएसएस फेल हो गया, यहाँ पर आरएसएस सक्सेस हो गया है। दैट इज वन। नंबर 2, आगे जाके इकोनॉमी के ऊपर बहुत टैक्सेस जिस तरह से बढ़ेंगे, अब देखिए एक सिंपल सी चीज है, ये रियलिटी लोगों में आने को थोड़ा टाइम लग जाएगा। बहन जो है, बहनें लड़की बहन बन के पैसे लेके खुश हो गई है, उसको रियलाइजेशन जब होगा, जब उसके आदमी के पास पैसे नहीं बचेगा, पेट्रोल के लिए पैसे देना पर खर्चा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये एक हिसाब निकला था बीच में, आपको ये लड़की बहन वगैरह स्कीम से लगभग 17-18 हजार रुपया दिए जा रहे हैं सालाना, और महंगाई और बाकी टैक्सेशन की हिसाब करोगे 93,000 रुपीज आपके पॉकेट से लिया जा रहा है। 93,000 लेके 15,000-18,000 आपको दे रहे। ये सिर्फ रियलाइज होगा, देखते हैं अगला इलेक्शन में उसका असर पड़ सकता है और पीपल रियलाइज। बट द ओनली थिंग बीएनके, आई डोंट डिसएग्री विद यू, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल मैं नासिर साहब से पूछना चाहता हूं। नासिर साहब, सोयाबीन, कपास, कांदा, ये बहुत बड़े मुद्दे थे इस बार किसानों को लेकर के। मेरा ये कहना है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50 रुपए का कांदा मिल रहा हो, कपास का किसान जो है, यानी कॉटन का किसान जो है वो रो रहा हो, सोयाबीन की उसको कीमत नहीं मिल रही हो। सर, सोयाबीन की जो लागत आती है ना, वो 7,500 की आती है। 7,500 रुपए क्विंटल की लागत आती है किसान को। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 6,000 रुपए पर क्विंटल हम लोग लेंगे, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो मिल रही है वो 3,890 या 4,000 के करीब मिल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये मुद्दे क्या कांग्रेस अच्छी तरीके से भुना नहीं पाई, लोगों तक लेके जा नहीं पाई, या क्या हुआ? बिकॉज आई कांट बिलीव दिस कि आज किसान जो है इतना ज्यादा परेशान है, मोदी जी की रैली जहां पर होती है लोग नहीं आते हैं। जो मैं बताता हूं, सांगली के नहीं, अभी अमित साहब सांगली में गए रैली करने, 200 लोग नहीं आ रहे। आप, मुझे नहीं मालूम है, हमारे पैनलिस्ट जो हमारे दो कहां से, शायद बेलापुर से या नवी मुंबई से, अभी जेपी नड्डा रैली करने आए थे बेलापुर में ही। कितने लोग आए थे? कैमरे रिकॉर्ड है। लोग सुनने नहीं आ रहे हैं उनको, पर वोट देने कौन आ रहे? ये सवाल है या नहीं है? आपने बोला हमने किसानों की,
हर हमारी पूरा इलेक्शन ही हमने किसानों के मुद्दे पे लड़ा। हर रैली में हमने इलेक्शन की जब भी गए हमने किसानों की आवाज उठाई। हम कह रहे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, मराठवाड़ा में पानी नहीं है, किसानों के पास यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उनके साथ ये परेशानियां है। वो मुद्दे दब गए, पर दबे मुद्दे कौन से उठे? सजाद नुमानी के, जिसका मैंने बार बार खंडन किया, उससे हमारा कोई लेना देना है, पर वो मुद्दे बन गए। बटेंगे कटेंगे जिस मुद्दे से, नारे से भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़ा रही थी, आज वो हिट कहला रही है। आज मोदी जी के सभा में वो झंडा फहराया जा रहा है। आप नहीं हो, मैं तो दिल्ली में हूं और मैं एआईसीसी के बाजू में ही इनके ऑफिस भी है, आप वहां से मैं गुजर रहा हूं तो वहां लोगों के हाथ में बटेंगे कटे के बैनर है। जो कल तक नारे लगाने से इनकार कर रहे थे आज उनके फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो आपने अभी आपके चैनल पे आके आपके क्या नाम है पाठक जी ने कहा उस संविधान फर्जी है, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपने संविधान को नकली बोलते हैं, जिसने संविधान के कॉपियों को जलाया हो। आरएसएस जो है कभी उस झंडे को मानने को तैयार, आज मुंह पे भले संविधान हो, आज भी उनके दिल में संविधान के लिए मोहब्बत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की बार बार कहते हैं, मैंने पूछा कि उनके दफ्ती रख पे हाथ डाला, उनके खिलाफ उम्मीदवार कौन उतारा था, तो वो नाम बताने के बदले भाग गए। तो आप पूछिए ना कोई किस किसने उम्मीदवार उतारा था। अरे बाबा साहब अंबेडकर को जितनी इज्जत कांग्रेस में मिली शायद ही कोई दे सकता है। अरे हमने उनको वो रुतबा दिया है जो जब तक ये आसमान ये दुनिया कायम रहेगी, बाबा साहब का अंबेडकर का नाम सुनहरे पन्नों में लिखा रहेगा। हमने वो काम किया, तो हमें नहीं कह सकते हमने बाबा साहब अंबेडकर में लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। विदर्भ में आपको 62 में से 7 सीट मिले, only 7 seats out of 62 you have got because आपने एग्रेरियन क्राइसिस, किसानों की समस्या सबसे ज्यादा विदर्भ और मराठवाड़ा में आपको 0 मिला है, 0 शून्य आपने अकाउंट में खोला है। और विदर्भ में आपको मसला ही नहीं है, अब छिपाने को कुछ नहीं है, नतीजों का दिन है। हम कहां कह रहे हैं हमें सीट ज्यादा मिली, हम वो इनकार नहीं कर रहे कि हमें सीट नहीं है, पर मुद्दे वो है, मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब तो हम चुनाव से पिछड़ गए, हम मानते हैं, मगर वो मैनिपुलेटेड इलेक्शन है। हम बार बार कह रहे हैं ये इलेक्शन को मैनेज किया गया है, जिस तरह हरियाणा के लोगों के वोट को चुराया है। मेरा पूरा आज भी है, हो सकता है महाराष्ट्र में वैसा हो, पर उस नतीजे को हम परखने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा, फिर हम इस पे खुल के बात करेंगे कहां कमियां रह गई, क्या हुआ, क्या हमारे अलायंस पार्टनर का वोट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। मेरे तो क्या है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। अभी हम आज बहुत जल्दबाजी में कुछ नतीजे नहीं बोल सकते, मेरी भी एक पाबंदी है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं हर कुछ अपनी मर्जी से नहीं कह सकता हूं। मेरे दिल में बहुत कुछ है कि कहां कमी होगी, कहां, मैं सब कुछ जानता हूं, मगर मेरी एक पाबंदी है, उसको आप समझा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों के बाद आप बैठेंगे हमारे साथ और अपने दिल की बात सामने रखेंगे। मैं श्योर, मैं कह रहा हूं ना, आप फोन पे बात करेंगे। चलिए धन्यवाद। फोन नहीं, यहीं पे बात करेंगे सर, यहीं पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने दिल की बात आप लोगों के सामने रखेंगे। BNK, thank you very much for joining us. Great pleasure. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. And by the way, congratulations for Jharkhand. Congratulations. Thank you so much. I appreciate, sir. For Priyanka Gandhi ji. और जय हिंद आप दोनों को। Thank you very much. Namaskar. So why did Atul Pathak suddenly get up and leave? What happened? He had to go somewhere? Or? He is one. He should have been laughing. What happened? He got so much under pressure from Nasir Saab. I don't know. Anyway, congratulations to Mr. Devendra Fadnavis, Mr. Eknath Shinde and Mr. Ajit Dada Pawar. They've got 231 or 232 seats out of 288 and no one predicted that. No one saw that coming. Even Pradeep Gupta said 200, 180 to 200 by the way. Yes. But sir, zero in Marathwada. Congress has scored 0 in Marathwada. Pradeep ji, हम लोग क्या बोल रहे थे? 7 out of 62. Only 7 out of 62 in Vidarbha. प्रदीप जी, हम लोग क्या बोल रहे थे यहीं बैठ करके, एक बार नहीं 10 बार मैंने और आपने बोला है कि आप लोग लाड़की बहन योजना को हल्के में मत आंकिए प्लीज। मनी इन द बैंक, some money talks, shit walks. Let's be very clear. If it's money in the bank, you can't argue with money in the bank, and that's exactly what seems to have happened where the Mahayuti is concerned. What? That's it. That's all we've got for you, and congratulations to everybody in Maharashtra. The election results are out. We have a stable government. We have an overwhelming majority, and the MVA has been more or less finished. So I wonder what they're going to do now. I hope Mr. Sharad Pawar merges with the Congress party, and finally they are one Congress party again. I hope it happens, and even if it doesn't, well, it doesn't. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल नेशन नाउ को दीजिए इजाजत, यानी प्रदीप जी और मुझको दीजिए इजाजत।
आप देखते रहे नेशन नाउ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सेंड इन योर कमेंट्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आप सब लोगों को जय हिंद।